Welcome to the final lecture of our semester, final lecture for the course of Thermodynamics 2. And today's focus would be on ClO2 vapor liquid equilibrium. As I go forward in this topic, I expect the students to know this by the end of this lecture. A student should have an idea of what is VLE, which stands for vapor liquid equilibrium. Understand and apply the Raoult's law. They should be able to understand the bubble and the dew points and use the Raoult's law to calculate them. Number 4, they should be able to construct the VLE curves with the dew point and bubble point curves at constant pressure and temperature. Then there's a portion of the modified Raoult's law, which is an extension of the Raoult's law. So a student should be able to understand that. K value relations should be known. And lastly, they should be able to calculate the bubble point and the dew point for light hydrocarbon mixtures using the Daddy-Beyer and the de Priester charts. So this is what I'm focusing on for this topic. Before I go on, in thermodynamics 1, we drew pressure volume curves. And if anyone remembers, in the pressure volume curves, I said for a thermodynamic calculations, the most important region was the vapor liquid equilibrium. यानी मैंने ये बताया था कि हमारी कैलकुलेशंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व होते हैं. अगर किसी ने देखना है कि उसका स्केच किस तरह बनता है थर्मो 1 के अंदर, जहां पर मैंने फेज डायग्राम्स दिए थे, उसमें है. बट इफ यू रिमेंबर, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम मींस टू फेज रीजन, यानी व्हाटएवर इज इनसाइड द कर्व would be a mixture of vapor and liquid. Whatever is on the left side of the curve would be liquid, and whatever is on the right side of the curve would be vapor. तो ये हमारा जनरल आउटलाइन था वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का. तो अगर हम थोड़ी इसकी बात करें, आगे जाकर देखते हैं. वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड एंड वेपर फेज. इसका मतलब ये हुआ कि दो फेजेस हैं, वो एक ही वक्त के ऊपर कोएग्जिस्ट करते हैं. अब कितने रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं ये वेरी करता है उस पॉइंट की लोकेशन के ऊपर. अगर मैं बिल्कुल लाइन के ऊपर देखूं, जो लिक्विड लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो उसके ऊपर जो लिक्विड होगा वो 100% होगा, जो वेपर होगा वो 0% होगा. अगर मैं बीच में देखूं तो लिक्विड 60, मे बी लिक्विड 60 हो, वेपर 40 हो. अगर मैं दूसरे एक्सट्रीम एंड पे देखूं तो हो सकता है लिक्विड तो यकीनन होगा लिक्विड 0 और वेपर 100. 100 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज 1. सो आइदर in terms of mole fraction the maximum value you can get is 1, and in terms of percentage the maximum value you can get is 100. So when thermodynamics is applied to VLE, the target is to find the temperature, pressure and composition of the phases in equilibrium. जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, हमारा टारगेट तीन चीजों के ऊपर होता है, या हमारा फोकस तीन चीजों के ऊपर होता है. हमें कोई भी कंपोनेंट का टेम्परेचर मालूम करना है, या प्रेशर मालूम करना है, या तीसरी चीज कॉम्पोजिशन मालूम करना है. वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन के अलावा हम ढूंढ नहीं सकते, इसीलिए इन तीनों पैरामीटर्स के बीच में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है कॉम्पोजिशन. अब इस VLE को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. पहला जो मेथड है वो होता है राउल्ट्स लॉ, सिंपल मॉडल्स के होते हैं. दूसरा जो होता है वो होता है हेनरीज लॉ. अब कौन सी कंडीशन के अंदर हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, ये हमारी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. यू कैन नॉट अप्लाई बोथ द लॉज इन सर्टेन कंडीशंस at the same time, which means that either one of the laws will be focused at one time. Is everyone clear till here? Yes, sir. Okay. I will now focus on the Raoult's law. जब आप Raoult's law की बात करते हैं इन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को रिड्यूस करने के लिए कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर, Raoult's law has
two major statements. Statement 1, the vapor phase is an ideal gas. Statement 2, the liquid phase is an ideal solution. अब इसमें देखें, इसके अंदर मैं फेज की बात कर रहा हूं. वेरी कन्वीनियंटली अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं और आप बोल दें द वेपर इज एन आइडियल गैस, द लिक्विड इज एन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज रॉन्ग. When we are talking about Raoult's law, it is clearly focusing on phase. जल्दबाजी के अंदर या in a hurry, we forget the word phase and we just write vapor, liquid. Absolutely wrong definition. The first assumption means that Raoult's law can be applied only for low to moderate pressures. क्योंकि हम ideal gas को assume कर रहे हैं, ideal gas की major assumption थी that the pressure is low or moderate, the temperature is higher. इसीलिए जो चीजों की कैलकुलेशन कर रहे हैं राउट्स लॉ के अंदर, एक assumption होना चाहिए कि आपका प्रेशर कम है. तो अगर आपको कोई का सवाल मिल रहा है जिसके अंदर आपको लग रहा है, डाउट हो रही है कि प्रेशर बहुत हाई है मेरा, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये इनवैलिडेट कर देगा राउट्स लॉ को. दूसरी कंडीशन आपकी बोलती है दैट इट हैज एन अप्रोक्सीमेट validity only when the species comprising the system are chemically similar. Chemically similar का मतलब ये होता है कि आपकी जो molecular species होती हैं ना, वो आपस में different नहीं होती हैं. When we are talking about the Raoult's law, we compare between two species which have to be similar या more or less same. उसकी क्या बोलते हैं organic chemistry के अंदर homologous series बोलते हैं, क्या बोलते हैं, I'm forgetting the word, but whatever it is, they are in the same series. For example, the alkane series, hexane and heptane, they can be compared. Pentane and hexane, they can be compared. Benzene and toluene, aromatic series can be compared. But something like benzene and let's say hexane, that cannot be compared. Ethanol and propanol can be compared because the species is same. So you need to keep in mind that while doing the Raoult's law, the two species have to be comparable. And the reason I'm saying two species, because in our calculations to make it simpler, we are focusing on binary compounds. So similar to ideal gas, which is basis for comparing it to a real gas. Whenever we do ideal gas equations, we keep something as a standard, a real gas. So similarly to that, ideal liquid is the basis or standard for comparison to real solution behavior. एक चीज आप दिमाग में ये रख लें कि चलें, we'll talk about it later. Mathematically, let's talk about the Raoult's law. Raoult's law, this formula you should know by heart ideally, because you're going to need it for any sort of calculation. The formula is simply nothing but VIP is equal to XI PI saturated. Is the equation clear in the slides? Yes, sir. Okay. If I go forward a bit, YI means it is vapor phase. Component I is in vapor phase. Capital P means the total pressure of the system. XI means the liquid mole fraction of the components. And PI saturated means that it is the saturated vapor pressure. If I just ask you, what is P? Simply P is going to be pressure. But if I ask you what is the combination between YIP, then it is a partial pressure of series I. And partial pressure of series I would always be less than the total pressure, because we know by Dalton's law of partial pressure that the total sum of all the pressure, the partial pressures, is equal to the total pressure. Before I move a step forward, keep this in mind that when we are dealing with binary compounds, suppose I'm dealing with two compounds, one is benzene, one is toluene. One of them is going to be X1, the other is going to be X2. Whatever is written in the first instance, for example, I write benzene / toluene. Benzene is going to be X1, toluene is going to be X2. If I write toluene / benzene, toluene is going to be component X1
and benzene is going to be component X2. आपने दिमाग में ये रखना है कि X1 और X2 का मतलब है बेंजीन और टाउलिन के अंदर वो लिक्विड फ्रैक्शन। जब Y1 और हर X1 के साथ एक Y1 की वैल्यू होगी, हर Y2 के साथ एक X2 की वैल्यू होगी। कभी कभी बच्चे इस चीज में धोखा खा जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि सम ऑफ X1 एंड Y1 इज इक्वल टू 1। या कहने की बात ये, if I am saying my X1 composition is 0.4, people assume that my Y1 composition is going to be 0.6। ये गलत है। X1 और X2 का सम 1 होता है, Y1 और Y2 का सम 1 होता है। एक बहुत रेयर स्पेशल केस हो सकता है जिसके अंदर X1 0.5 आ जाए, Y1 0.5 आ जाए, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। हर वक्त ये नहीं होगा। 99% आपके पास X1 की वैल्यू कोई और होगी, Y1 की वैल्यू कोई और होगी। तो इसको कहीं नोट कर लीजिए। मैं दोबारा, to make it easier for you, I will repeat one more time. The condition is that X1 plus X2 is equal to 1. Y1 plus Y2 is equal to 1. तो कोई ये ना सोचे कि अगर कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर X1 आपने निकाला 0.3 तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कैलकुलेशंस आपने 0.7 लगा दिया Y1 के लिए। ये गलत हो जाएगा। अगर तुक्के में सही हो गया तो सही हो गया, मगर 99% ये गलत होगा। यहाँ तक सब है मेरे साथ? प्लीज अपना माइक बंद करें अगर अननेसेसरी नॉइजेस हैं वहां पर। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अहमद, आपको कोई सवाल है? आप बार बार माइक खोल रहे हैं। नो सर वो वाईफाई चला गया था, जब दोबारा ऑन किया तो माइक ऑन गया था, वो हो गया था ऑटोमेटिकली। चलें। वाओ। अच्छा, अब बात आती है कि हर whenever we have everything there is a certain drawback to it। इसी तरह Raoult's law has a certain drawback. The drawback of Raoult's law is it can only be applied to species of known vapor pressure. इसका मतलब if you know the vapor pressure you can apply Raoult's law. Above point will also signify that the species has to be in the subcritical regime, meaning the temperature has to be below the critical temperature. फर्ज करें I ask you to make some calculation और उस कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको पेंटेन की बात करता हूँ। पेंटेन का अज्यूमिंग क्रिटिकल टेम्परेचर है 300 और मैं आपको दे दूं पेंटेन के ऊपर 500 के ऊपर फाइंड आउट करो, तो उसका रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर या कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाइएगा। सबसे पहले आपको चेक ये करने की ज़रूरत है कि आपकी रिजीम के अंदर आता है या नहीं। अगर 300 से नीचे है आपका टेम्परेचर, वेल एंड गुड। 250 है, आप राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। अगर आपका 305 भी है, that is more than the critical temperature, Raoult's law is inapplicable, and if you try solving your question is going to be absolutely wrong. मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो ये नहीं बोलिएगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, लंबा किया है, टाइम लगाया है। That is a no-no, because it is not a mistake, it is a blunder. You do not know that Raoult's law is not applicable if the temperature is above the critical temperature. So keep that thing in mind. First thing you do is you check the temperature regime, and in such a condition where Raoult's law, your temperature is greater than the critical temperature, the only other method of solving this question would be via Henry's law. And for Henry's law, you'll need to know the solubilities, and that's a different topic altogether. Is everyone clear here till here? Clear, sir. Okay. Then we come to two other definitions which are called the bubble point and the dew point. In thermodynamics, the bubble point is the temperature at a given pressure where the first... Sorry? सर ये रिपीट कीजिएगा। अगर T जो है ग्रेटर हो जाए TC से
तो फिर हम हेनरीज लॉ यूज करेंगे। जी, ठीक फिर है। आपको हेनरीज लॉ पे आना पड़ेगा, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फिर आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू दिस रीजन। In thermodynamics, the bubble point is a temperature at a given temperature where the first bubble of vapor is formed. यानी bubble point वो point है कोई भी temperature पर एक given pressure के ऊपर जब first bubble आपका form होएगा। When heating a liquid consisting और इसके अंदर when heating a liquid consisting of two or more components, इसका मतलब ये हुआ the minimum condition for finding the bubble point has to be that your mixture is a binary compound. Single compound के लिए कभी bubble point या dew point नहीं निकल सकता. That is exactly why it is falling in the vapor liquid equilibrium. Dew point जो है वो इसका converse है या इसका उल्टा है. It is the point at which the first drop of the gaseous mixture begins to condense. These are just the general definitions of the 2 points. अच्छा, डायग्राम के अंदर देखें, जब आप डायग्राम की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और बनाने के साथ लेबल करना चाहिए। एक ही वक्त में जब आप एक डायग्राम बनाते हैं तो या तो आप प्रेशर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन बनाते हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के लिए, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है आप टेम्परेचर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन बनाते हैं। अगर आप प्रेशर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन बनाएं तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर पूरी प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं होगा। और अगर आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं टेम्परेचर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन, उसके अंदर आपका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। ये मैंने बात की टेम्परेचर और प्रेशर की। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द कॉम्पोजिशन. When I'm talking, if you look at this diagram, you can see the values from 0 to 1. This 0 to 1 is for one component, either x1 or x2. You need to know for what component you're making. If I ask you to make it for x2, then you need to find the x1 values and subtract it from x2 to get the x2 values. Or you can directly use the formula for Raoult's law keeping the x2 values. यानी अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, हम 0.4 पॉइंट ले लें, 0.4 और मैं बात कर रहा हूँ बेंजीन और टाउलिन की। लेट्स से बेंजीन स्लैश टाउलिन है, मेरा x1 बेंजीन है। मैंने कहा मैंने पॉइंट 0.4 लिया है बेंजीन का। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? 0.4 बेंजीन का मतलब हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर टाउलिन 0.6। तो अगर आप ये डायग्राम, यही डायग्राम टाउलिन के लिए बना रहे होते तो इस 0.4 के जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं वो 0.6 के ऊपर होती। बात समझ आई? यस सर। तो एक ही वक्त के अंदर आप या x1 की बनाएंगे या x2 की बनाएंगे, अनलेस इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ ये होता है कि आप सारे पैरामीटर्स एक ग्राफ के अंदर फिट कर दें, वरना आमतौर पे हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम स्टडी करते हैं हम एक पैरामीटर को फोकस करते हैं और फिर अगर हम बोलें कि हमें दूसरे पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए तो हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं मालूम करने के लिए। तो अगर कभी मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इस वैल्यू के ऊपर कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो ये आपको ईजिली मालूम पड़ जाती है। अब एक चीज को आप याद रख लें कि मैं कभी भी प्रेशर विद कॉम्पोजिशन अगर पूछूं, प्रेशर विद कॉम्पोजिशन के अंदर बबल पॉइंट कर्व इज ऑलवेज द कर्व ऑन द टॉप, ड्यू पॉइंट कर्व इज ऑलवेज द कर्व एट द बॉटम। इधर भी देख लें ऊपर वाला जो कर्व है वो बबल पॉइंट कर्व है, नीचे वाला जो कर्व है वो ड्यू पॉइंट कर्व है। 99% of the time at constant pressure the bubble point curve is going to be a straight line. You will ultimately get a straight line, but a curve is also known, a line is also known as a curve. So kabhi it forms a confusion when we call a straight line a bubble point curve. Is everyone clear till here? Whatever is above the bubble point line, that is going to be liquid. Whatever is in between this curve, for example, the line on the top and the line at the
bottom, the bubble point line and the dew point line. Whatever is in between, that is going to be of your combined region. That means it's going to be vapor and liquid. And whatever is below the red line, that is going to be your gaseous portion. Another important point is that we assume that for every line there is one bubble point. That is absolutely rubbish. One line can have multiple bubble points or multiple dew points. कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन के ऊपर एक ज्यादा बबल पॉइंट हो सकते हैं और ज्यादा ड्यू पॉइंट हो सकते हैं. हर कॉम्पोजिशन के ऊपर एक अलग बबल पॉइंट होगा, हर कॉम्पोजिशन के ऊपर अलग ड्यू पॉइंट होगा. अगर मैं 0.4 ले लूं, 0.4 की लाइन को मैं ऊपर एक्सटेंड करूं, तो आप देखें मेरा जो प्रेशर आ रहा है वो समथिंग ओवर 40 आ रहा है. अगर मैं 0.8 को ऊपर कर लूं, तो मेरा जो प्रेशर है वो समथिंग अबाउट 60 मिलीमीटर मर्करी आ रहा है. तो इससे साफ अंदाजा हो जाता है कि बबल पॉइंट के लिए आपके पास डिफरेंट बबल पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन के ऊपर. तो कल को अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो ये नहीं बोल दें कि एक ही बबल पॉइंट है. क्लियर? ओके, ये इसका एक डिफरेंट वेरिएशन है. अगेन, अगर मैं सिर्फ ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन मिटा दूं और मैं प्रेशर मिटा दूं और मैं आपसे ये पूछूं और मैं आपको ये दो लाइनें दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कांस्टेंट पैरामीटर क्या है और वेरिड पैरामीटर क्या है, जस्ट जजिंग बाय द स्ट्रेट लाइन ही आपको बता देगी कि ये बबल लाइन है. तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर स्ट्रेट बबल लाइन पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ये प्रेशर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन है और टेम्परेचर में वेरी कर रहा हूं. और यही मेरा एग्जैक्टली दिस वाज माय मिड टर्म क्वेश्चन. Simply, this is exactly what I asked, if you remember. The converse of this falls in the other way. अब यहाँ पर देखें, अगर मैं constant pressure रखता हूँ, if I keep constant pressure, that means my only parameter that I am going to change is temperature with composition. The important point in this is the dew line is going to be on the top and the bubble line is going to be on bottom. And the bubble line is usually not a straight line in this situation. It is a curve. So if I ask you for an analytical question, by analytical means I give you figure 1, figure 2. I ask you, identify the figures and explain the difference between them. First difference, you can easily tell about the dew point and the bubble point. Second difference, constant pressure, constant temperature, which is which. Third difference, straight line, curved line. So that means if I just give you two figures, I don't give you any other information. And my question is, based on the figures above, determine the differences or determine figure A is which type of curve. Something on the basis of that. Okay. That was up till the bubble point and the dew point. Now the main thing that we come on is the calculations. And how do we calculate? We calculate with the help of Raoult's law. In vapor-liquid equilibrium, we can have 4 combinations. The 4 combinations are bubble P, dew P, bubble T, and dew T. So if I give you in a question, calculate the bubble P or calculate the dew P, you should know what parameters you're calculating and what parameters are given. For example, the name itself would tell you. If I give you the name bubble P or dew P, you know that one of the parameters that has to be calculated is pressure, because the name is telling you that this is the parameter that is being calculated. If you look on these this list, bubble P and dew P, you're calculating pressure. Bubble T and dew T, you're calculating temperature. तो देखकर ही अंदाजा हो गया कि मैं प्रेशर को कैलकुलेट करना है या मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. दूसरी कंडीशन आती है, वर्ड आपको बबल और ड्यू बता देगा. आम तौर पे जब हम बबल की बात करते हैं तो हम बबल के अंदर हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? वेपर्स आते हैं. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर्स आर अबाउट टू बी फॉर्म्ड. तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो गया नाम देखकर ही कि हमें वेपर कैलकुलेट करना पड़ेगा. और वेपर फेज क्या होता है?
yi। और जब हम ड्यू पॉइंट की बात करते हैं तो कंडेंसेशन की बात करते हैं, यही बात करते हैं ना। तो कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास लिक्विड आ जाता है xi। तो ये एक तरीका है, लेमैन एग्जांपल है, बट इजीएस्ट वे टू लर्न इज कि आप नाम से देखें, जो चीज है वो वेरिएबल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर बबल है तो बबल के लिए हमेशा y कैलकुलेट होगा, ड्यू के लिए हमेशा x कैलकुलेट होगा। तो अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं होता, फर्ज करें मैंने आपको ये जो सेकंड लाइन है, कैलकुलेट दिस एंड दिस गिवन दिस एंड दिस, ये चीजें मैं नहीं देता, मैं आपको सिर्फ देता ड्यूटी दिया है, आप नाम देखते, you would look at the name and you would say okay fine, it's duty, I am going to calculate temperature in this, it is due means xi। is everyone with me? So Yes, that is the easiest way to remember Yes, this. So that is exactly what I'm telling you in this. The important thing that you need to know is that you need to know what is the formula at bubble point pressure and dew point pressure. Experts have found out that based on the Raoult's law and rearranging it, the pressure at bubble point is given by sigma I xi Ti saturated. This is a defined formula. So if I have a binary compound and if I ask you for a binary compound, the total pressure, look, my question is not the pressure of component I. If I'm saying bubble point of component I, then there's no problem. But if I'm saying the total pressure of the bubble point for this entire thing, it's a binary compound, you will have to open this sigma sign. So your formula for the total bubble point pressure would be nothing but pressure is equal to xi Pi saturated plus xj Pj saturated, because it's a binary compound. In other words, x1 P1 saturated plus x2 P2 saturated. Clear? clear. Okay. Similarly, the dew point has a calculating pressure also. You should know this formula also. It is the inverse of the other one. In dew point, your total pressure is going to be 1 upon sigma yi upon Pi saturated. Often what the students forget is they forget the yi at the top. So if I'm going to open this formula, my formula is going to open as 1 upon y1 upon P1 saturated plus y2 upon P2 saturated. For example, if I say my y1 is 0.4, so my formula is going to become 1 upon 0.4 upon P1 saturated plus 0.6 upon P2 saturated. Clear? Clear, sir. अब बात करते हैं बबल पॉइंट या बबल पी कैलकुलेशन के लिए। देखें, फर्ज करें मैंने आपको पहली लाइन दी नहीं होती, इग्नोर करें पहली लाइन, तो देखकर आपको क्या मालूम होता? व्हाट कुड यू टेल फ्रॉम बबल पी कैलकुलेशन? You could easily tell that I am calculating pressure, firstly. Secondly, you could easily tell that I need to calculate yi. So telling you this, that calculate yi and p, that is redundant. I am not supposed to tell you this. You can just tell, if I say using bubble p calculation, give me the answer for blah, blah, blah. So just looking at that, you can say that, okay, bubble p is in my mind. Bubble p means pressure calculate करूं और yi में कैलकुलेट करूं, यकीनन मेरे पास xi और t होगा। कभी कभी ये होता है कि इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होता है, तो ये आपको खुद अंदाजा करना होता है कि मैं कौन सा इंफॉर्मेशन पिक करूं, बिकॉज you need to be the best judge on what information you can pick out for what use. जब मैं bubble p की कैलकुलेशन करता हूं, और if I want to calculate bubble p, there are three main steps. The first step of calculating the bubble point pressure is close your eyes and calculate saturated pressure. Saturated pressure for component 1 and saturated pressure of component 2 using the Antoine equation. You should know what the Antoine equation is.
प्लीज माइक बंद रखें. You should know what the Antoine equation is, and that is the first step that you should do. But in simple words, Antoine equation is used to calculate the saturated vapor pressures. That is the first step. For example, when I told you that if you're calculating something in the equations of state, the first step that you should do is you should take out the reduced temperature and reduced pressure. You will need it. So in these sort of calculations, you would need the saturated pressure 1 and the saturated pressure 2. Close your eyes and do it. Second step is you need to find the pressure, because what is Raoult's law? Raoult's law is yi P is equal to xi pi saturated. Okay, you can find pi saturated from Antoine equation. You are given xi. You still have two unknowns. एक unknown जो आपके पास होगा वो pressure होगा, दूसरा unknown आपके पास जो होगा वो yi होगा. तो दो unknown के लिए एक unknown तो पहले ढूंढना पड़ेगा ना. तो पहले आपको यकीनन pressure ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आपको मालूम है, आपको आपका सैचुरेटेड प्रेशर मिल गया एंटोइन इक्वेशन से. आपको आपका xi की वैल्यू भी मालूम है, क्योंकि xi या तो दी गई होगी या अज्यूम करनी पड़ेगी. अज्यूम आपको xi इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये बबल पॉइंट कैलकुलेशन है, yi ढूंढना है. तो आप ये अज्यूम करेंगे कि मुझे xi की वैल्यू मालूम है, और जब आपको ये दो चीजें मालूम है, तीसरी चीज आप प्रेशर ढूंढेंगे, चौथी चीज आप yi के ऊपर आएंगे. Only then you can apply the Raoult's law. तो हमारे जो equations जो use होते हैं, और the equations that we use, the first is the Antoine equation. Ln P saturated is equal to A minus B upon T plus C. Suppose you do not know where to find this equation. Does everyone have the data booklets with them or the data sheet? Yes, sir. I think it is table B2 in your data sheet. टेबल B2 सर, एक मिनट देखते हैं. या B1 होगी या B2 होगी. सर ये सेट 2 है. सेट छोड़े, ऊपर B2 है सर. B2 है. B2 है सर. इधर से आप हर कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट ए बी सी देख सकते हैं. आपको जो बात जहन में रखनी है वो यूनिट्स देखने हैं कि यूनिट्स किसके अंदर हैं. किलो पास्कल के अंदर है या पास्कल के अंदर है, टॉर के अंदर है, क्योंकि असल जो गेम है वो यूनिट्स की गेम है. अगर आपने उल्टा सीधा कर लिया और यूनिट्स मेसअप कर लिए तो मसला हो सकता है. जो टेबल है उसके अंदर आपको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, केल्विन में, सेंटीग्रेड में? केल्विन में. यूजुअली मैं भी केल्विन प्रेफर करता हूं. अगर आपको फार्मूला नहीं मिल रहा, टेबल की सबसे ऊपर देखें, आपको फार्मूला भी मिल जाएगा. यू हैव द फार्मूला रिटन इन द टॉप ऑफ द टेबल. सही है. So that is the Antoine equation. That is the first equation you should know. The second equation is calculating pressure. Pressure का equation अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले. Pressure is equal to sigma x1 p1 saturated. That is the total pressure. अब अगर इसको मुझे मालूम है मेरे पास बाइनरी कंपाउंड है, और मैं अभी अपनी बातों के अंदर आई इवन टोल्ड यू दैट इफ इट्स अ बाइनरी कंपाउंड, प्रेशर इज गोइंग टू बी x1 p1 सैचुरेटेड प्लस x2 p2 सैचुरेटेड. यही कहा था ना. अब अपनी आसानी के लिए मैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर मैं x1 भी लूं x2 भी लूं, व्हाई शुडंट आई जस्ट मेक इट इन टर्म्स ऑफ x1. तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे मालूम है x1 plus x2 is equal to 1. So I just make x2 the subject to bring it in terms of x1. 1 minus x1. When I substitute 1 minus x1, मेरा जो आखिरी जो फॉर्मूला है ना, this is the formula which you should know. You do not need to know the derivation. You should know this formula, that total pressure is equal to P2 saturated plus bracket open P1 saturated minus P2 saturated bracket close x1. ये वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू सिग्मा xi pi सैचुरेटेड सेम है. जी सर किसी का माइक ओपन है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बैकग्राउंड से. मैंने रिक्वेस्ट तो की है, मैं कर देता हूँ म्यूट यहाँ से.
प्लीज कोशिश करें अपने माइक्स ऑफ रखें, अनलेस आपको क्वेश्चन पूछना है या मैं आपसे पूछूं। और अगर मैं पूछ, इफ आई आस्क एवरीवन अंडरस्टूड, देन से यस एंड क्लोज योर माइक। तो the third equation of pressure, P2 saturated plus P1 saturated minus P2 saturated x1, that is the equation you should know to calculate the pressure. So that is the second step. First step, you calculate the saturated pressure. Second step, you calculate the total pressure. Once you have the total pressure, then you can calculate your y1. The reason why I haven't written x1, because this is bubble P calculation, you already know x1, so there is no need to calculate x1. So directly you can use Raoult's law to calculate y1. Clear? Okay, I'm moving forward then. This is nothing but the data that I was trying to show you. That open your data sheets and you can see that where the equation, Antoine equation is written and the different components that are written. And how to use this table, I will just tell you in a bit. Let's have a practice problem. Practice problem says binary system of acetonitrile. Over here, things have been made easier for you. 1 and 2 is written. Usually 1 and 2 is not written. But like I said, when 1 and 2 is not written, you know acetonitrile is component 1, you know nitromethane is component 2, which means that when I talk about acetonitrile, I will use X1. When I talk about nitromethane, I will use X2. When I'm talking about their corresponding vapor phases, Y1, Y2. And it says that it confers closely to the Raoult's law. If I say it confirms closely to the Raoult's law, there is no doubt that Raoult's law is being followed over here. So the pressure is going to be low and obviously the temperature is going to be below the critical regime. The vapor pressure for the pure species are given by the following Antoine equation. They have given you these values. This question is easier for you because the value of A, B, and C is already given. In the first component, 14.2724 is A value. 2945.47 is B value. 49.15 is the C value. Suppose these values were not given. I had given you a component, toluene. Then you would use your data sheet and you would take out the value of A, B, and C for toluene and put it in this equation. Does everyone know how to solve the exponential equations using your calculator? I hope everyone does know how to use that. So you have these equations, and based on this question, it also says your temperature is 75 degrees. What is this telling you? This is telling you nothing but your temperature is 75 degree. यानी आपका टेम्परेचर 75 डिग्री है जो कांस्टेंट रहेगा, और यकीनन ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अगर आप प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन कर्व बनाओगे, इफ यू आर चेंजिंग द प्रेशर, द टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट. तो आप अपनी टी वैल्यू की जगह क्या लिखोगे? टी वैल्यू की जगह गलती से 75 नहीं लिख दीजिएगा, आप लिखेंगे 75 प्लस 2 73.15 केल्विन. अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर है, प्लीज चेंज इट टू केल्विन. रैंकाइन के अंदर है, प्लीज चेंज इट टू केल्विन. अब सॉल्यूशन की बात करते हैं. You know your temperature is 348.15 Kelvin. Firstly, I said Antoine equation. Do the Antoine equation for component 1. You get a saturated pressure 83.21 kilopascal. Repeat the Antoine equation for number 2. You would get a different value. Get a value 41.982 kilopascal. That is step 1. Step 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था? एनीवन? कहाँ पे सर? सॉल्व करने के लिए सर प्रेशर मालूम करेंगे ना आप एंटोइन इक्वेशन से. जी, आप एंटोइन नहीं, एंटोइन इक्वेशन से नहीं, एंटोइन इक्वेशन का काम हो नहीं सर, वो
y1 को y को मालूम 1 है रख के p मालूम करेंगे, खाली टोटल प्रेशर मालूम करेंगे हाँ, x1 p1 सैचुरेशन लगा के। आपका एंटोइन इक्वेशन का काम हो गया यहाँ तक। आप प्रेशर मालूम करेंगे, वो जो मैंने आपको इक्वेशन दी थी ना, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P2 सैचुरेटेड प्लस P1 सैचुरेटेड माइनस P2 सैचुरेटेड x1। टोटल प्रेशर ये सर था ना, बिल्कुल सही है? यस सर, जी यही था। सर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, यही कह रहा अब था। देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। वैसे तो आपको मुझे वैल्यूज दे देनी चाहिए। अगर मैंने वैल्यूज नहीं दी तो आपको थोड़ा सा अजम्पशन लगाना है। मुझे मालूम है बबल पी है, बबल पी से मुझे ये भी मालूम है बिकॉज इट इज बबल पी आई नो एक्स वैल्यूज, एंड बाय कॉमन सेंस आई ऑल्सो नो दैट x1 कैन ओनली बी बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 0 एंड 1। यानी मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स मालूम है कि 1.0 होगा, 1.1 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और ग्राफ बनाने के लिए मैं सेंटर पॉइंट्स ले लूं टू मेक अ गुड ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मैं कोई 0.3 ले सकता हूं, 0.65 ले सकता हूं, 0.78 ले सकता हूं, बट दिस इज रबिश। रबिश है क्योंकि एक तो टाइम ज़ाया होगा और दूसरा ग्राफ के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो अपनी आसानी के लिए सिंपली इवनली क्यों नहीं ब्रेकआउट कर लेते, 0.2 ले लें, 0.4 ले लें, 0.6 ले लें, 0.8 ले लें। और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो आपको वैसे ही मालूम है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो आपने आपके सैचुरेटेड प्रेशर कैलकुलेट किए हैं ना, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग प्रेशर एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। यानी इन दोनों में से एक प्रेशर 0 के ऊपर होगा, एक प्रेशर 1 के ऊपर होगा। क्लियर है? बात समझ आई? सर जी हम जो है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 सबके ऊपर अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर मतलब कौन सी हमें, मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी हम इसके अंदर पुट करेंगे? देखें, जब आपको मैंने वैल्यू नहीं दी और अगर मैंने आपको ग्राफ बनाने को बोला है, एक अच्छा ग्राफ बनाने के अंदर 5 पॉइंट होते हैं ना, अग्रीड? जी सर, 5 या 6 पॉइंट होते हैं। इन 5 या 6 पॉइंट के अंदर आपको 2 पॉइंट मालूम है, आपको 0 मालूम है, आपको 1 मालूम है। अगर मैंने आपको पॉइंट नहीं दिए हैं कि 0.2 करो, 0.4 करो, 0.6 करो, 0.8 करो, तो आई डोंट केयर, आप इनमें इनके बीच में कोई भी वैल्यू कर लो। आप 0.15 कर लो, 0.30 कर लो, 0.45 कर लो, 0.60 कर लो, 75 कर लो, मुझे मसला नहीं है। ये अजम्पशन कर कर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो अगर कोई वैल्यू मैंने दी नहीं है। मगर अगर मैं ग्राफ बनाने को बोल दूं तो 2 पॉइंट से ग्राफ बन नहीं सकता। ग्राफ के लिए एटलीस्ट 5 या 6 पॉइंट होते हैं। मैंने बीच की वैल्यूज इसलिए ली हैं क्योंकि मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। और इधर ये जो 3 लाइनें लिखी हैं इसके अंदर मैंने यही बोला है, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर एट डिफरेंट एक्स वी नो दैट x1 कैन ओनली लाई बिटवीन 0 एंड 1, सो आई माइट एज वेल टेक वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। तो मेरी जो पहली वैल्यू जो मैंने अज्यूम की है ना, वो मैंने अज्यूम की है 0.4। अगर आप ये प्रेशर इक्वेशन देखें तो मैंने यहां पर 0.4 डाला है जिससे मुझे टोटल प्रेशर मिल गया है। मैंने क्या गलती की है? गलती मेरी क्या है? The mistake I've made is that I haven't written the unit for pressure, and that is not a mistake, that is a blunder. तो इसके ऊपर प्लीज इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस है असेसमेंट के अंदर। आइदर ये क्वेश्चन आएगा, या मॉडिफाइड राउल्स लॉ आएगा, या डीप प्रीस्टर चार्ट आएगा। इन 3 के अंदर से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि तीनों में से एक आएगा। अब कौन सा आएगा ये आपकी किस्मत है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कौन किस में है। तो मैंने क्या किया, मैंने x1 के अंदर 0.4 की वैल्यू डाली तो मुझे एक प्रेशर की वैल्यू मिली। नोट ये करें, ये जो 58.4732 प्रेशर है ये सिर्फ उस 0.4 के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रेशर मेरा 0.2 के लिए भी होगा, 0.6 के लिए भी होगा। जब मुझे ये प्रेशर मिल गया और मुझे ये इसकी कॉम्पोजिशन मालूम है तो मुझे क्या ढूंढना है, मैं राउल्स लॉ लगाकर y1 ढूंढ सकता हूं ना। तो मैंने यहां पर y1 ढूंढ लिया 0.5692। व्हाट डज दिस वैल्यू टेल यू?
this value tells you that when the composition x1 is 0.4, for example, let's assume x1 is benzene. This tells you that when the composition of liquid phase in benzene is 0.4, at the same time the vapor phase of benzene is 0.5692. Clear? ये आपको ये भी बता देता है जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला था कि x1 एंड y1 लाजमी नहीं है 1 हो। 99% ये 1 नहीं होगा। और ये देख लें, x1 आपका 0.4 है, y1 आपका 0.5692 है। दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने ये याद कर लिया कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड थिंग, कैन आई ऑल्सो से, मेरी वर्डिंग सुनिएगा, इज माई स्टेटमेंट करेक्ट? माई स्टेटमेंट इज एट अ लिक्विड फेज ऑफ 0.6 toluene, my vapor phase is 0.5692. यस सर, बिल्कुल करेक्ट है ये। करेक्ट है? जी सर, टोलिन 0.6 पे ही होगा मतलब। Y2 नहीं पता है। मुझे आप ये बताएं कैसे होगा? जब मैं टोलिन Y2 होगा, Y1 नहीं होगा। Y2 करेंगे, आपको Y2 निकालना पड़ेगा। यानी आपने राउट्स लॉ के अंदर ये लिखना पड़ता Y2 इज इक्वल टू Y2P इज इक्वल टू X2 P2 सैचुरेटेड। या तो आपको ये करना होता, या आपने पहले से ही ये निकाल दिया है ना Y1 0.5692, तो आपने 1 माइनस कर लेना था। वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मैं एप्पल और ऑरेंज दोनों कंपेयर कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सिंदरी और चौसा कंपेयर कर सकता हूँ तो मैंगोज टू मैंगोज कैन बी कंपेयर्ड, बट एप्पल्स टू ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल मैंने इसीलिए यहाँ पर पूछा कि मैं आपकी एप्लीकेशन देखना चाह रहा था कि मैं वहां से x1 ले रहा हूँ और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ y2, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? बेहतर है कि मिस्टेक अभी हो जाए। अगेन गारंटी नहीं है कि यही असेसमेंट में आएगा, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। शुड आई मूव ऑन? अब मैं ये बात कर रहा था कि मुझे एक टेबल बनाना है। अच्छे टेबल बनाने के लिए मुझे हर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जो मैंने 0.4 के साथ किया है ना, वही चीज मैं 0.2 करूंगा, 0 के साथ करूंगा, 0.6 के साथ करूंगा, 0.8 के साथ करूंगा, सेपरेटली करूंगा। आई विल डू देम सेपरेटली एंड आई विल गेट सेपरेट वैल्यूज एंड आई विल गेट सम tabulated results like this. These I've already worked. अगर आप कर देखें, you would get these values. इससे एक चीज जाहिर होती है, आपका जितना भी प्रेशर होगा that will be between the two extremes, 41 और 83 के बीच में होगा। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं हर वैल्यू सेपरेटली निकालूं। तो जिसको ये वैल्यूज निकालनी है वो बैठकर इसको सॉल्व करे। और डेफिनेटली आपको दिखानी पड़ेगी। अगर कोई बंदा मुझे ये बोलता है, इन केस अगर ये है कि मैंने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लिया है, तो मैंने फिर कैलकुलेटर के ही नंबर दे दिए हैं। मुझे क्या मालूम आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है या आपने एक फ़ोन लगाकर सॉल्व किया है। तो ये सारे 5 या 6 जो चीज़ें हैं, ऑल दिस 5 या 6 थिंग्स हैव टू बी शोन। इसी पॉइंट के ऊपर इफ आई गिव यू अ फ्रैक्शन, लेट्स से आई गिव यू द पॉइंट 0.2, I make a circle on that point. I say, I give you this table, I make a circle on 0.2 and I ask you, what does this 0.2 tell me? Yeah, what is the significance of 0.2? You would say that 0.2 means 20 mole% acetonitrile, which means that that is X1. But you would also say that at the same thing, it is 80% mole% nitromethane. बिकॉज अगर वो 0.2 कंपोनेंट 1 है तो उसी जगह 0.8 कंपोनेंट 2 है। इक्विलिब्रियम का वर्ड नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम पूरा ये कर रहे हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम।
We are doing vapor liquid equilibrium, so it is in equilibrium with vapor containing 33.13% acetonitrile, क्योंकि उसकी वैल्यू 0.3313 था। तो एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, which you should mention, 33.13% acetonitrile and 66.87% acetonitrile या nitromethane. Don't forget to mention that, क्योंकि this is what this information is telling you. And the last thing to mention is pressure. Pressure आपको यहां से दिख गया कि इसका क्या प्रेशर है, 50.2276। बात समझ आई? सर वो पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था जो आपने पूछा था? क्या हुआ? तो पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था जो आपने पूछा था? पीछे मैंने सिर्फ दोनों की वेरिएशन चेंज कर दी थी। मैंने कहा था कि मैं इसको यूं कंपेयर कर सकता हूं कि मैं आपको एक जगह y1 की वैल्यू दे रहा हूं और ये वाली वैल्यू आप यूज कर रहे हो कि अगर मेरा x1 वो है और y1 ये है, मैंने x1 की जगह 0.6 कर दिया था, मैंने टॉलिन अज्यूम कर लिया था कंपोनेंट 2, तो उसके लिए ये 0.5692 आंसर गलत था। आपका जो आंसर आना चाहिए था वो 1 - 0.5692 आना चाहिए था। x2 के साथ y2 होगा, x1 के साथ y1 होगा। x1 and y2 cannot be compared। सही है? ओके सर। तो अगर मैं आपसे ये पॉइंट पूछूं ना कि मैं कोई पॉइंट को सर्कल कर दूं और मैं बोल दूं एक्सप्लेन दिस, तो ये 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आप इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो कंपोजिशन कौन से टेम्परेचर के ऊपर है, नंबर 2। नंबर 3, कौन सा कंपोनेंट कितने में है, बोथ इन लिक्विड एंड वेपर फेज। नंबर 4, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अले भी चार्ज थी वो सटो जाते हो लेटो जी। ओ नहीं सर सॉरी, मैं आपसे नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इक्विलिब्रियम। अगर आपने ये पूरा स्टेटमेंट लिख लिया और इक्विलिब्रियम मिस कर लिया, दैट इज अ ब्लंडर, बिकॉज इक्विलिब्रियम के बगैर ये चीज हो नहीं सकती। और नंबर 5, प्रेशर। ये 5 चीजें आपने मेंशन कर ली। ये मैंने यही चीजें थोड़ा एक्सेल के ऊपर किया था, क्योंकि मैंने कहा कि छोड़ो उसके ऊपर कौन करता है, एक्सेल जब है आपके पास तो एक्सेल पे करो। फिर मैंने इसका एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना। एक्सेल कितने लोगों को यूज करना आता है? अगर आपने कंप्यूटेशनल मेथड्स बोल रहा हूँ, अब्दुल मनान के साथ कोर्स किया था तो मुझे यकीन है कि उसने आपको एक्सेल सिखाया होगा। एक्सेल कितनों को यूज करना आता है? सही सही बता दें, कोई शर्माने की बात नहीं है। कितनों को यूज करना आता है कि अगर मैं बोल दूं कि ये वैल्यूज मुझे टैबुलेट कर दे दें, यूज करना आता है? अच्छा, आपको आता है, देख लिया मैंने हैंड अप। सही है। अब बिल फर्ज अगर मैंने आपको, आप लोगों को क्वेश्चन है या हाथ है कि यूज करना आता है? अगर हाथ था यूज करना आता है तो हाथ हटा लीजिए, मैंने नाम देख लिया किसको आता है। बिल फर्ज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इन केस अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो मैं अभी रिपीट कर रहा हूं और मैं आपके सीआर से भी मैसेज भेज दूंगा, यू शुड हैव अ ग्राफ पेपर इन केस आई गिव अ ग्राफ क्वेश्चन अगेन। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? ये आपको कल मालूम पड़ जाएगा, सॉरी ये मालूम पड़ जाएगा आपको। कुछ चीजें तो मेरे पास रहने दें ना, सारी चीजें मैं आपको रास करता रहूं तो क्या होगा। मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि तीनों लेक्चर से क्वेश्चंस आएंगे। सर ये जो आपने अभी जो आप स्लाइडें पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका ये सीएलओ में जितनी स्लाइड्स हैं और जो आपने सीएलओ 1 और सीएलओ 2 में जितनी स्लाइड दी, असेसमेंट सर उसी में से होगी ना? उसके अलावा जो बकाया कोर्स है उसमें से असेसमेंट नहीं आएगी ना? फॉर दिस पोर्शन ओनली इसमें से असेसमेंट होगी, बट आपको आपके कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। यानी अगर आपने मेन स्लाइड्स पढ़ ली उससे रिलेटेड तो आपको बैकग्राउंड मालूम है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको इन स्लाइडों से अगर फ्यूगैसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फ्यूगैसिटी लीव कर सकते हैं, मगर लेट्स से अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ स्टेट, तो आपको उसकी हिस्ट्री तो मालूम होनी चाहिए ना कि इक्वेशन किस तरह डिराइव हुआ है क्या। तो मैं ये बोल रहा था
मैं ये बोल रहा था कि प्रिकॉशनरी अपने साथ एक ग्राफ पेपर रख लीजिएगा इन केस अगर ग्राफ आ जाए। नहीं आया तो आपकी किस्मत, आ गया तो फिर ये नहीं बोलिएगा कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने नहीं बताया था। जिसको, और अगर ये ग्राफ पेपर आ गया, सिंस ये डिजिटल वर्ल्ड है, जिसको एक्सेल पे बनाना है वो एक्सेल पे बना सकता है, जिसको हाथ से बनाना है वो हाथ से बना सकता है ग्राफ पेपर के ऊपर। नॉर्मल पेपर के ऊपर ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होती कि आप बोलें कि मैंने पेपर के ऊपर ग्राफ बना दिया है। सर ये लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं खुला हुआ, मसला है, कहाँ से मिलेंगे ग्राफ अभी? एक्सेल पे बनाओ, ये एक्सेल पे कहाँ से बनाए यूज नहीं सर? करना। छोड़ दें, आम पेज पे बना लेंगे। लास्ट टाइम भी तो सर बनाया था ना, लास्ट टाइम भी अच्छा। जब आप नहीं दिए थे तब भी तो हमने बनाया था ना। या देखो एक प्रेजेंटेशन होती है, फिर अगर आंसर, अगर लेट से मैंने ये क्वेश्चन दिया, अगर आंसर गलत आया फिर मुझे नहीं बोलना। ग्राफ सर आंसर तो लास्ट टाइम बिल्कुल सही आया था। मैंने ड्रॉ तो सर ड्रॉ तो किसी चीज पे भी हो सकता है ना, वो तो किधर डिपेंड ड्रॉ करता किया है। था? आपने किधर अगर ड्रॉ वैल्यू किया सही था आपने? डाली है तो आपका लास्ट टाइम वैल्यू आपने सही किधर डाली है तो आप मेरी बात सुनिए, जी। लास्ट टाइम आपने किधर ड्रॉ किया था? मैंने खुद ग्राफ पेपर जो प्रोवाइड किया था, आपने कहाँ से मैन्युअली प्रोवाइड कर दिया था? जो आपका होमवर्क असाइनमेंट था उसके ऊपर मैंने आपको कंडीशन दी थी ग्राफ पेपर की। मुझे नहीं लगता मैंने ड्रॉ किया हुआ है सर, मैंने पेज पे ड्रॉ किया हुआ है। मेरी वैल्यूज बिल्कुल ठीक थी, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आई थी मेरी पावर पॉइंट की। मतलब हो सकता है अगर उस पे किया जाए। और वैसे भी लॉकडाउन है सर, तो कहाँ से मिलेंगे ग्राफ? यहाँ तो बंद लगा पड़ा है यहाँ की मार्केट। देखें, फिर प्रिकॉशनरी एक्सेल सीख लें। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि चलो मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहें इन केस, मैं आपको डमी वैल्यूज़ भेज सकता हूँ, आप उसके ऊपर ग्राफ प्रैक्टिस करना बना लें डमी वैल्यूज़ के ऊपर। या डमी वैल्यूज़ छोड़ें, ये आपके पास डमी वैल्यूज़ ये सामने पड़ी हुई हैं, इसी को एक्सेल पे बनाकर देखें। ये आपके सामने वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ना, इसी को एक्सेल, मैं 64 एक सेकेंड आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट में। आप इसी को देखकर बना लें ग्राफ को। नहीं आता मुझसे पूछ लें, मेरे साथ वीडियो मीटिंग कर लें। इन मतलब ये केस, क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है? हाँ जी, एक कंफर्म आ रहा सेकेंड, है? 64 पहले पूछें। 64 आप क्या पूछ रहे थे? सर आप फ्यूगेसिटी का कह रहे थे, तो आप वो पढ़ाएंगे क्या? फ्यूगैसिटी या डेंसिटी? मैं फ्यूगेसिटी, वो सारे स्टीम टेबल्स वगैरह। मैं ClO3 कर चुका उन्होंने हूँ। बोला वो नहीं आएगा। मैं ClO3 कंप्लीट कर चुका हूँ, आज मैं सिर्फ ClO2 पे फोकस कर रहा हूँ। तैयबा आप कुछ पूछ रही थी? सर मैं कह रही थी कि कंफर्म अब ये सवाल आने वाला है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने आज तक आपको डीप प्रिस्टर चार्ट के ऊपर भी नहीं टेस्ट किया है, और आप लोग का जो वाइवा सारा खराब हुआ था वो डीप प्रिस्टर के ऊपर आया हुआ था। सर इसमें से 2 चार्ट और दे दें, लेकिन डीप प्रेशर नहीं दे, छोड़ दें सर उसको, तब भाई ये सर छोड़ दें। वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि हमारा प्लान यही होता है जो तो स्टूडेंट हमारा ख्याल करें। सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करे वो सर नहीं। पता नहीं किसकी माइक में से गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं। जो चुप रहे। अच्छा सुने, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, फजूल बातें बाद में कीजिएगा। अब बैक टू माय लेक्चर। तो अगर ग्राफ के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए किस तरह आपका ग्राफ बने, जो मैंने भी तो बनाया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता है वैल्यूज प्रैक्टिस कर ले, आई एम विलिंग टू हेल्प यू। मैं आपको सिखा भी दूंगा ग्राफ बनाना। मुझे आप बताएं तो सही कि कोशिश करें, नहीं बन रहा मुझे बताएं। वीडियो बना के ना सर अपलोड कर दें, वीडियो बना के अपलोड कर दें, ग्राफ कैसे बनेगा, बबल पॉइंट का ड्यू पॉइंट का, इसी पे, यार इसी डमी इस पे तरह अपलोड करना, सब आ जाएगा ना सर। हर बंदा आपको अलग अलग मैसेज करे, पूरे लिखना ये थोड़ा मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पहले स्टूडेंट खुद मेहनत करे, मुझे पिक्चर भेजे अपनी कि मुझसे ये बनना है, फिर मैं करूंगा। मैं आंसर तो आपको दे सकता हूं, बट दैट इज नॉट लर्निंग। और मैंने अब्दुल मनान से, आई कंफर्म्ड विद अब्दुल मनान, ही सेड आई डिड एक्सेल, आई डिड वर्ड, ये सारी चीजें मैंने की हुई हैं। तो अगर कोई ये डाउट कह रहा है कि हमने, इफ एनीवन इज सेइंग वी हैवंट डन एक्सेल, मुझे बोलने दें। इफ एनीवन इज सेइंग आई हैवंट डन एक्सेल, आई कैन लिंक अब्दुल मनान इन दिस चैनल एंड आस्क हिम के, और वो फिर सबको फिर वैसे ही बता देगा। तो प्रिकॉशन, प्रीवियसली मैं अपना होमवर्क कर बैठ चुका हूँ। अच्छा चलें आगे चलें, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। क्या मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, कहाँ से याद है? अच्छा सुने, इसी तरह ड्यू पॉइंट भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं ना y1, लेट्स से मैंने आपको y1 0.6 दे दिया और बोला कि आप मुझे ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करें, एक दफा आपके पास ग्राफ बन गया है ना, तो आपका काम आसान हो जाता है।
आपने सिर्फ पॉइंट 0.6 पे जाना है, लाइन को एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करेंगे? जो आपकी ड्यू लाइन है ना, रेड वाली लाइन जो बनी है, उस पे एक्सटेंड करेंगे और उसको क्रॉस लेफ्ट पे ले जाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप रीड कर लेंगे। तो इस तरह आप एक ही पॉइंट के ऊपर बबल पॉइंट भी रीड कर सकते हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर आप ड्यू लाइन भी रीड कर सकते हैं। और ग्राफ के ऊपर मेन जो चीजें होती हैं वो लेबलिंग होती हैं। अगर आप मेरा ग्राफ देखें, सारा मेरा ग्राफ लेबल्ड है विथ यूनिट्स एंड विथ द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। नीचे मैंने x1 y1 लिखा है, इसका मतलब मैं x1 y1 के अगेंस्ट बना रहा हूँ। एक चीज जो मैंने नहीं लेबल की, वो इसलिए नहीं लेबल की कि मैंने ऊपर बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर कलर से क्लियरली नजर आ रहा है कि बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, लेजेंड्स बने हुए हैं। पर अगर आप पेपर पे कर रहे हैं और आपने इसके ऊपर कुछ मुझे डिमार्केट नहीं किया, उसके ऊपर नहीं लिखा, मुझे क्या मालूम कि बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है। आप बोले ऊपर वाला ड्यू पॉइंट है, मैं आपसे आर्ग्यू करूं? नहीं। तो ये बात का एक ध्यान रखना चाहिए। लेबलिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन ग्राफ। कि सर आपने रीजन भी तो नहीं लिखा कि कौन सा है, क्या सैचुरेटेड, हाई टेम्परेचर वेपर है या लिक्विड है, ये सब भी तो नहीं लिखा आपने। तो मांगते हैं। मैंने ये नहीं लिखा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ग्राफ बनाया था। यू कैन ऐड दैट वेपर और लिक्विड एट द टॉप। आइडियली आई शुड हैव रिटन दैट, पर मेरा फोकस इस वक्त ग्राफ बनाने पर था तो मैंने उसको जरा देखा नहीं। बट तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पुट अ वी एंड एल, पूरा भी नहीं लिखें। ओके ओके। गलतियां बस जरूर पकड़िएगा। सर अगर आपसे Clear गलती हो करना है सकती है तो भी हो सकती है। क्या हुआ? कहा मैंने सर अगर आपसे थोड़ी बहुत मतलब कि मिस्टेक हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। जी, मगर जब मैं एक चीज बता चुका हूं तो उसका मतलब है कि फिर वो होनी नहीं चाहिए। बट अच्छा, मुझे पहुंचने दे, डीप रीस्टर तक पहुंचने दें, बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ से हम जाएंगे नहीं तो मसला हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बोल रहा था, एक तरीका आपका है कि आप 0.6 से लेकर, अगर मैं आपसे सिर्फ बोलूं आइडेंटिफाई द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या इस तरह कर कर बोलूं, इट इज वेरी इजी। 0.6 पे जाएं एंड क्रॉस रीड इट ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स गोइंग टू टेक सेव टाइम। बट इफ आई स्पेसिफिकली टेल यू कैलकुलेट, और आप लाइन एक्सटेंड कर कर उधर से रीड करें, दैट इज रॉन्ग। कैलकुलेट मीन्स you show the working, you show a mathematical working how you calculated it। वो अलग बात है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएं, आप आंसर अपना चेक कर लें कि मेरा आंसर सही है या नहीं, आप ग्राफिकली भी कर लें, it'll take 1 minute। मगर आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको मालूम है मुझे पॉइंट 0.6 पे करना है, तो मैं उसको करूंगा। अगर मेरा y1 0.6 है, मुझे अपना p1 सैचुरेटेड भी मालूम है एंटोइन इक्वेशन से, मुझे अपना p2 सैचुरेटेड भी मालूम है, y2 मुझे 0.4 मिल जाएगा। तो इजीली मुझे अपना 59.740765 किलो पास्कल भी I can find out। And if I extend this line over here at 0.6 and the red line, you can easily see that it's coming somewhere between 50 and 60। So obviously 10-20 का फर्क होगा क्योंकि ये ग्राफिकल है, वो एग्जैक्ट है, बट मोर और लेस इट इज द सेम थिंग। तो ये बात समझ आई? Then you can do the Raoult's law, and again you will need to do the Raoult's law। The reason why you need to do the Raoult's law is I have asked you to calculate the dew point या point x1 at c। जब आप ड्यू पॉइंट की बात करते हैं तो आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है? x1 ढूंढनी पड़ती है, राइट? x1 ही ढूंढनी पड़ती है ना। तो आपने राउल्ट्स लॉ उल्टा लगाकर x1 की वैल्यू ढूंढनी है। यहां तक हैं सब मेरे साथ? यस सर। ओके, थैंक यू। अब इसका रिवर्स आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मैंने किया था प्रेशर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन, अब मैं कर रहा हूं टेम्परेचर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन। डेटा सारा प्रीवियस वाला है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं टेम्परेचर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन करूंगा तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहली बात, या द फर्स्ट थिंग आई शुड नो, टेम्परेचर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन मीन्स pressure is constant, the first important thing। The second important thing, without even making my diagram, I would know that my dew point is going to be on the top, my bubble point is going to be at the bottom। Clear? These two facts I should know। How to approach this question, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है।
you have to find the two saturated temperatures T1 and T2. Again you use the Antoine equation. उसके बाद वही प्रोसेस है, आपको सैचुरेटेड प्रेशर ढूंढना है, फिर आप x1 एंड x2 ढूंढते हैं। फर्क क्या है इसको जरा गौर से सुन लीजिए। जब आप बबल पॉइंट, जब आप कांस्टेंट उस पे कर रहे थे, सॉरी प्रेशर अगेंस्ट कॉम्पोजिशन कर रहे थे, तो आप क्या ढूंढ रहे थे? आप सिर्फ प्रेशर ढूंढ रहे थे। यहां पर आप P1 और P2 ढूंढेंगे जो सैचुरेटेड प्रेशर है। सैचुरेटेड प्रेशर क्यों ढूंढ रहे हैं, प्रेशर क्यों नहीं ढूंढ रहे? अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है सर। जो प्रेशर गिवन होगा यू ऑलरेडी हैव P, तो उसको प्रेशर को क्यों ढूंढेंगे? You will find out the saturated pressure. So how to solve this? ये equation you should know कि the first thing that you are doing is Antoine equation. इसका Antoine equation थोड़ा सा different है। The Antoine equation for the pressure against composition was in terms of pressure with temperature. This is in terms of temperature against pressure. अगर आप वो equation देखें, that is LNP saturated is equal to A plus B upon T plus C था, I think something like that, या T plus C या T minus C जो भी था। इसके अंदर it is B upon A minus LNP minus CI। कॉन्स्टेंट्स अगेन आपको पीछे से मिल जाएंगे। जो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल था उससे आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी। ये 49.15 कहाँ से आया? ये सब मुझे पिछली वैल्यूज से मिल गया है। ABC की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आई गॉट फ्रॉम I know A is 14.27, B is 2945, C is 49.15. If these values are not given in the question, you can easily get them from the data. And the pressure value you can find out from here, 70 kilopascal. You already know this pressure. So my first step is that I need to find the temperature using this equation, because the only unknown that I have is T1 saturated या temperature saturated. मैं ये वाला equation 2 दफा लगाऊंगा। 2 दफा इसलिए लगाऊंगा और I'll make it 2 times because I have 2 compounds. So first time I get T1 saturated, second time I get T2 saturated. Is everyone with me? Hello? Yes sir, yes sir. Okay, so my T1 saturated is 342.9945. Similarly, my T2 saturated is 362.7336. ये जो आपके 2 पॉइंट हैं या 2 points, these are your extreme points. One end is going to be T1 saturated, one end is going to be T2 saturated. आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी इस पॉइंट के बीच में आने के लिए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या आप करेंगे? आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लें। यू कैन टेक एनी वैल्यू दैट यू लाइक बिटवीन देम। मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज ले ली हैं, आप ऐसी भी वैल्यू ले सकते थे टू मेक इट स्मार्टर। 345.15 की जगह आप ले लेते 345, दूसरी की जगह आप 348 ले लेते, 351 ले लेते, 354, 357। अब जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट सेम वैल्यू ले। अगर आपको रेंज मालूम है कि मेरी रेंज है 342.9945 और 362.7366 के बीच में, every student can take a different value as long as it is between this. For example, one student could have taken 346, 350, 354, 358. Another student could have taken 347, 349, 353, 358. इस तरह कर कर आप डिफरेंट वैल्यूज ले लेते, मगर कम से कम आपने 4 या 5 वैल्यूज लेनी थी, बिकॉज अगेन एक अच्छा ग्राफ बन नहीं सकता, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में 4 या 5 वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि आप एंटोइन इक्वेशन रिवर्स में लगाकर 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर ढूंढ लें। दूसरा पार्ट क्या हुआ कि आप एक सिलेक्टेड टेम्परेचर जो आपको पसंद आए कि मैं ये लगाना चाहता हूं या यू लाइक, आप वो वैल्यूज साइड पे लिख लें। क्लियर है? अब
बात आती है कि आपका जो सिलेक्टेड टेम्परेचर है, आपने पहला सिलेक्टेड टेम्परेचर किया 347.15, ये मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, ट्राई किया था। लेट्स से मेरा पहला सिलेक्टेड टेम्परेचर 347.15 है, मैं उसके ऊपर सैचुरेटेड प्रेशर लगाऊंगा। सैचुरेटेड प्रेशर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर तो मालूम है, मुझे ढूंढना है दोनों सैचुरेटेड प्रेशर। यानी मैंने अगर 347.15 लिया तो मैं ओरिजिनल एंटोइन इक्वेशन लगाऊंगा उसके ऊपर, सैचुरेटेड प्रेशर 1 ढूंढने के लिए, सैचुरेटेड प्रेशर 2 ढूंढने के लिए। ये जो दो सैचुरेटेड प्रेशर मुझे मिले हैं ना, वो सिर्फ इस पॉइंट 347.15 के लिए मिले हैं। यानी मैंने 4 दफा एंटोइन इक्वेशन लगाया। पहली दफा तो मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स लगाने के लिए लगाया, उसके बाद मैंने उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगाया। क्लियर है? 347 पॉइंट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर 347.15 I will use the Antoine equation 2 times. Reason I use it 2 times is because it is a binary compound. So once for component 1, once for component 2. That will give me 2 saturated values. Clear? अब राउल्ट्स लॉ यूज करने के लिए हमें 4 चीजें मालूम होनी चाहिए थी। कौन सी 4 चीजें मालूम होनी चाहिए थी? एक हमें प्रेशर मालूम होना चाहिए, एक हमें YI मालूम होना चाहिए, एक हमें XI मालूम होना चाहिए, दूसरा हमें P2 सैचुरेटेड मालूम होना चाहिए। हमें कितनी चीजें मालूम है इस वक्त? हमें कितनी चीजें मालूम है? वन टू थ्री फोर सर 2 हाँ सर 2 वैल्यूज मालूम है ना, P सैचुरेटेड मालूम है और हमें YI मालूम है ना। हेलो, हाँ जी, तो आपको 2 वैल्यूज मालूम है, यानी आपको x1 मालूम है, x1 मालूम करना है और y1 मालूम करना है। अब ये क्या करेंगे? अब आपको वो अब आप बेसिकली रिवर्स में जाएंगे। आपको ये मालूम है ना, जो प्रेशर इक्वेशन था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x, ये मालूम है ना, वही जो मैंने इक्वेशन पहले लिखा था। तो मैं सिंपली x1 ढूंढने के लिए ये कर सकता हूँ। 70 मेरा क्या है? मेरा प्रेशर है। P, यानी दिस इज द फॉर्मूला, write it down somewhere if you can't tell from here. The formula is nothing but x1 is equal to P minus P2 saturated divided by P1 minus P2 saturated. ये कहां से आया? x1 is equal to P minus P2 saturated upon P1 minus P2 saturated. This has come nothing but from दिस इक्वेशन। आखिरी इक्वेशन देखें, ये जो इक्वेशन है ना, P इज इक्वल टू P2 सैचुरेटेड प्लस P1 सैचुरेटेड माइनस P2 सैचुरेटेड x1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x1 को सब्जेक्ट बना दिया। इफ आई मेक x1 द सब्जेक्ट, माय लास्ट इक्वेशन बिकम्स P माइनस P2 सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय P1 सैचुरेटेड माइनस P2 सैचुरेटेड। अग्रीड? जब मुझे x1 मालूम पड़ गया तो फिर क्या रह गया? राउल्ट्स लॉ। y1 कैसे मालूम होगा? नथिंग बट राउल्ट्स लॉ। y1 p आई ऑलरेडी नो 70, x1 मुझे ऊपर मालूम पड़ गया 0.7377 और 80.501 मुझे पहले प्रेशर मालूम पड़ गया, P1 सैचुरेटेड, y1 मिल जाएगा। तो इस x1 के ऊपर ये y1 वैल्यू है। समझ आई? क्लियर है? अब ये जो था ना, ये 1 पॉइंट के लिए था। मुझे ग्राफ बनाने के लिए 5 पॉइंट चाहिए अज्यूमिंग, तो मैं डिफरेंट वैल्यू लूंगा। लेट्स से मैंने अपनी दूसरी ट्रायल वैल्यू 360 ली, जो कि उस रेंज के बीच में है। उसका दोबारा मुझे सैचुरेटेड टेम्परेचर 1 सैचुरेटेड प्रेशर 1 निकालना पड़ेगा, सैचुरेटेड प्रेशर 2 निकालना पड़ेगा। मैं प्रीवियस वाले का नहीं यूज कर सकता। आई रिपीट, I cannot use the previous one because these, for every point there is a specific saturated temperature and a specific saturated pressure. तो आपने इन दोनों के लिए
सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड प्रेशर निकाला, आपका P कांस्टेंट ही रहेगा. इस दफा आई पुट द फॉर्मूला x1 इज इक्वल टू P माइनस P2 सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय P1 सैचुरेटेड माइनस P2 सैचुरेटेड. 70 आपका कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको पीछे से मिली, ये वैल्यू आपको मिली, ये वैल्यू आपको मिली. आपको आपका x1 मिल गया 0.10131. इसका कॉरिस्पॉन्डिंग y1 आपको मिलेगा फ्रॉम द राउल्स लॉ. थर्ड वैल्यू 354.15 के साथ ये करेंगे. कम से कम 5 वैल्यू के साथ ये करना पड़ेगा. आपको इस तरह का एक ग्राफ मिल जाएगा या पॉइंट्स मिल जाएंगे. ये आपको 4 या 5 पॉइंट मिल गए. एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पर हैं, मैंने बीच में 3 पॉइंट लिए, बट आइडियली यू शुड हैव 4 पॉइंट्स मिनिमम, 4 to 5 पॉइंट्स. अगेन वही बात है, x1 प्लस y1 इज नॉट इक्वल टू 1. आप देख रहे हैं खुद अपने सामने, आप ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ट्रेंड को. एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए भी अगर आप एक जगह 0 डाल देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है और कौन से पॉइंट पे क्या आ रहा है. डायरेक्ट आप उसको फॉर्मूले पे डाल दें राउल्स लॉ के अंदर. जब आपको ये पॉइंट मालूम पड़ गए, अगेन यूजिंग योर ग्राफ पेपर, इफ यू हैव अ ग्राफ पेपर, इफ यू डोंट हैव अ ग्राफ पेपर, एक्सेल इज योर फ्रेंड. आप ये समझ लें कि एमएस के अंदर, एमएस ऑफिस में एक्सेल आपका बेस्ट फ्रेंड है. और जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अपने बनाएंगे F5P के अंदर, एक्सेल जितनी मदद करेगा उतनी कोई चीज़ नहीं मदद करेगा, क्योंकि कोई भी आपसे ग्राफ नहीं लेगा कि हाथ से ग्राफ बनाओ. एक्सेल पे ही बनाना पड़ेगा. तो जिसको एक्सेल नहीं यूज़ करना आता ग्राफ बनाने के लिए, I would recommend learn how to make graph, and now is the best time to learn how to make a graph. So you can clearly see over here bubble line and dew line. Dew line is coming above the bubble line, like I mentioned, and it is slightly curved. Over here it's looking like a straight line, but in reality it is curved. This was with the exact points. Okay, now we come, that was just to do with the temperature and pressure composition. Now we come on to the basis of modified Raoult's law. That is nothing but an extension of the Raoult's law. We know that the Raoult's law is nothing but YIP is equal to XI PI saturated. There is an extra term called the activity coefficient gamma I, which is used to find the modified Raoult's law. The same gamma can be applied to the bubble point pressure, which is the first equation. So the bubble point pressure would be Xi gamma I Pi saturated. Similarly, the dew point pressure would be 1 upon Yi upon gamma I Pi saturated. अगर मेरा बाइनरी कंपाउंड होगा, so my equation would be for dew point, क्योंकि बबल पॉइंट वाली आसान है. dew point would be 1 upon Yi upon gamma I Pi saturated plus Yj upon gamma j Pj saturated. दो कंपोनेंट्स के लिए. यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए. आगे देखें इसको. इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है. आपके पास ये सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है, ln gamma 1 is equal to ax square, ln gamma 2 is equal to ax1 square. This is a relation already given. What you can do is you can use this relation to find out the gamma 1 and gamma 2 values. ये जो a है ना, a is equal to 2.771 minus 0.00523 t, ये भी आपको रिलेशन दी गई है. इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे मिलेगी? Just hold on a minute please. अस्सलाम वालेकुम सर. अल्लाह का शुक्र सर. बोले. केमिकल की सर कोर्स आउटलाइन तो नहीं है मेरे पास. सारी कोर्स आउटलाइन नहीं है मेरे पास. मैडम नुसरत के पास होगी. सर मेरे पास भी थी, मगर रिफ्रेश कर दी थी तो वो फिर उधर नहीं सर, वो बस मिस हो सही. थैंक यू. Yes. So A is given. What is the temperature that we are going to use over here?
The temperature would definitely be given to you also. If you go further in this question, it is clearly shown that temperature is 45 and x1 is 0.25. So all you need to do is you need to put your temperature in the value of T. So what I've shown you the solution. All you need to do, you write the formula for the modified Raoult's law. You know your temperature is 318.15. Again, I'm focusing temperature is on Kelvin because the whole Antoine equation is based on Kelvin. So any unit I give, you have to convert it. ln P1 saturated is, this is nothing but the Antoine equation to find P1 saturated. X1 आपको दिया गया है 0.25, तो ऑटोमेटिकली आपको X2 मिल जाएगा. सबसे पहले आपने वही किया, आपने P1 सैचुरेटेड निकाला, आपने P2 सैचुरेटेड निकाला. ये आपने दोनों इसलिए निकाले क्योंकि ये आपको राउल्ट्स लॉ में लाजमी यूज करने पड़ेंगे, तो बेहतर ये है पहले ये निकाल दें. फिर आप एक्टिविटी कोएफिशिएंट की बात करते हैं. अगर आप देखें एक्टिविटी कोएफिशिएंट के अंदर ये जो ए की वैल्यू है ना, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर यूज हो रही है, तो पहले हम क्यों नहीं ए की वैल्यू ढूंढ लेते हैं. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ टी 318.15 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए आपका क्या है 1.1070. What would you do is you would put this 1.10 over here. ln gamma 1 is equal to 1.10. x2 की वैल्यू आपको मालूम इसलिए हो जाएगी because in the question they have told you x1 is 0.25. If x1 is 0.25, x2 is automatically 0.75. So all you do is you substitute 0.75 whole square, you will get a value for gamma 1 which is 1.8639. Similarly, you would put the value of x1 whole square in the second equation, you would get a value for gamma 2. Once you have that, you find the total pressure. टोटल प्रेशर का भी वही फॉर्मूला होगा. मैंने अगर आप टोटल प्रेशर को ओपन करोगे तो वो सिग्मा होता है ना. देखें टोटल प्रेशर मुझे निकालना क्यों जरूरी है. टोटल प्रेशर इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि मैंने शुरू के अंदर बोल दिया था कि जो प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अंदर यूज हो रहा है वो टोटल प्रेशर यूज हो रहा है, और टोटल प्रेशर इज नथिंग बट द सम ऑफ सैचुरेटेड प्रेशर बिकॉज पार्शियल प्रेशर्स इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर. तो आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, आपको पहले बाइनरी कंपाउंड को खोलना पड़ेगा टोटल प्रेशर ढूंढने के लिए. x1 आपको मालूम है 0.25, गामा 1 आपको मालूम है ऊपर कैलकुलेट किया है. P1 सैचुरेशन मैंने इसलिए एंटोइन इक्वेशन लगाया था क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर में यूज हो रहा था. इसी की तरह मुझे x2, गामा 2 और P2 सैचुरेटेड डाला, मुझे ये टोटल प्रेशर मिला 73.825. इसका क्या मतलब हुआ. इसका ये मतलब हुआ कि 73.825 किलो पास्कल मेरा टोटल प्रेशर है राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए. इसके बाद मैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ लगा सकता हूँ. देखें YIP इज इक्वल टू XI गामा I PI सैचुरेटेड. YI मुझे यहाँ से मिल गया, YI मुझे ढूंढना है. P मेरा 73.85 है, P इज 73.85, XI इज 0.25, gamma I is equal to this, and PI saturated I know, so I would get 0.2853. I asked you to find the total composition. A smart student would automatically subtract 1 from 0.28573 saying it's a binary compound. I found out the value of Y2. ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसको ये क्लिक नहीं करे तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा यूज कर सकता है. He can use the above formula and say Y2 multiplied by P is equal to x2 जो 0.75 बन जाएगा into gamma 2 value and saturated pressure 2 value. तो आपको आंसर यही मिलेगा. Is everyone clear with me? Yes sir. That's the modified Yes, version of the Raoult's law. Then we come on to the K value correlations. K value इन्होंने डिफाइन की हुई है. डिफाइन इस तरह की है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर yi upon xi, which is nothing but Ki is defined as vapor phase of component X, component 1 upon the liquid phase of the same component. तो अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन टाउडीन सॉल्यूशन की, तो Kb would be nothing but Kb would be y1 क्योंकि बेंजीन 1 है, y1 upon x1, and Kt toluene is going to be y2 upon x2.
So the above quantity is simply called the K value. ये K value कोई वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगी, कोई नई चीज नहीं ऐड करेगी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम वही रहेगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि लाइट और हैवी कितना है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज जो वो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं ना, वो क्या प्रेफर करेंगे वेपर फेज को या वो प्रेफर करेंगे लिक्विड फेज को। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, 1 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब आपका जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो वेपर फेज को फोकस करेगा। मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मैं yi डिवाइड बाय xi करूं, लेट्स से मेरा yi आ रहा है 0.6, मेरा xi आ रहा है 0.7, ये 1 से बड़ा होगा 1 से कम होगा? वन से कम होगा। 1 से अगर कम हुआ तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस वक्त जो मेरा प्रेफरेंस है ना वो लिक्विड की तरफ है, बिकॉज द सम इज लेस देन 1, सम इज लेस देन यूनिटी। आंसर आपका यूनिटी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यूनिटी आ गया तो आपके जो कंपोनेंट हैं वो नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। ये आपने पढ़ा होगा मास ट्रांसफर के अंदर। And what is an azeotrope? An azeotrope is something which cannot be separated by distillation because the relative volatility is the same, and the concept of relative volatility comes from the K value, yi upon xi. Clear? That's all you need to know in this portion. इसी तरह जब आप Ki की बात कर रहे हैं तो Ki can be formed in terms of Raoult's law. अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही कि Ki is equal to Pi saturated upon P कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूं, जो इसको कहीं लिख लें। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ देखें। राउल्ट्स लॉ इज YiP is equal to Xi Pi saturated, यही है ना। अगर मैं Yi की जगह Xi को Yi के नीचे ले जाऊं और उधर जो Y के साथ P था उसको दूसरी साइड पे नीचे ले जाऊं, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा Yi अपॉन Xi, दूसरी साइड पे रह जाएगा Pi saturated upon P. So hence you can say Ki is equal to Pi saturated upon P. This could have also been written as Yi upon Xi is equal to Pi saturated upon P. It is nothing but the Raoult's law written in a different form of K value. Modified Raoult's law के अंदर भी मैं रिकॉर्डिंग जरा रोक रहा हूँ. I will make a new recording after this.